سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج کے نوجوانوں کے بارے میں فکر مند۔ عالمی سطح کے اسلامی اسکالرز کے ساتھ مکالمے میں کہا کہ آج کا نوجوان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جہاں معاشرے کو کرپشن اور جنسی جرائم جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ معاشرے میں کرپشن اور جنسی زیادتی جیسے جرائم کو ناقابل قبول بنانا ہوگا، ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ That there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. The other 99% I feel the society has to fight it. Same with corruption. This is not just a problem in Pakistan, it's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. لاہور ڈویژن میں عوام کو صحت کارڈ کی سہولت مکمل طور پر دستیاب ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا آئندہ 45 دنوں میں صوبہ پنجاب کے تمام خاندان صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک سالانہ کے علاج کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس انقلابی پروگرام سے لوگوں کی صحت کے اخراجات اب ان کے بجٹ کا حصہ نہیں رہے، یہ خرچ مکمل طور پر حکومت اٹھا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا تیزی سے جاری ہے، نادرا میں رجسٹرڈ ہوئے بغیر صحت کارڈ نہیں مل سکے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا صحت کارڈ صرف خاندان کے سربراہ کو ملے گا۔ ہیلتھ کارڈ سے لاہور کے 133 اسپتالوں میں طبی سہولیات حاصل کی جا سکیں گی۔ صوبائی وزیر نے بتایا قومی صحت کارڈ کے نام سے اپلیکیشن بھی متعارف کرا دی ہے۔ پھر یہ کارڈ سب کے لیے تو ہم نواز شریف صاحب کو بھی کارڈ دیں گے، ان کے آگے بال بچہ جو ہے ان کو بھی دیں گے۔ کوشش کریں گے ضرور کہ ہم اچھے سے اچھا علاج ان کا یہیں پاکستان میں کریں۔ ہر خاندان کو ایک صحت کارڈ ملے گا، 10 لاکھ روپے ہے، اور اس 10 لاکھ کے اندر وہ اپنے فیملی کا علاج کروا سکے گا۔ لاہور ڈویژن کے اندر 133 ہاسپٹلز جو ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں۔ نادرا سے آپ نے امیڈیٹلی اپنے کارڈ بنوانے ہیں، ڈیٹا میں نہیں آئیں گے ہم ان کو علاج نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، ایپ کا نام ہے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ۔ یہ ایپ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن دے دیتا ہے۔ پنجاب میں صحت کارڈ کے لیے 399 ارب روپے بجٹ میں رکھنے کا دعویٰ کھوکھلا نکلا۔ رواں مالی سال میں صحت کارڈ کی مد میں صرف 80 ارب روپے مختص کیے گئے، باقی 319 ارب روپے کہاں سے آئیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح صحت انصاف کارڈ میں بیشتر بیماریوں کے علاج کی سہولت ہی دستیاب نہیں۔ نارمل چیک اپ اور ڈاکٹرز کے تجویز کردہ ٹیسٹ صحت کارڈ میں شامل نہیں۔ ایکس رے، دانتوں اور آنکھوں کا علاج صحت کارڈ میں شامل نہیں۔ بانجھ پن، حاملہ ہونے کا طریقہ کار اور ہارمونز کی خرابی کا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے، جبکہ ذہنی، نفسیاتی، اعصابی تناؤ، دماغی بیماریوں کا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل نہیں۔ اسی طرح خودکشی کی کوشش کرنے والے منشیات کے عادی افراد کا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے۔ کھیل یا ورزش کے دوران ہونے والی انجری کا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے۔ کسی بھی سانحے یا حادثے میں زخمی ہونے پر پلاسٹک سرجری بھی صحت کارڈ میں شامل نہیں۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد صرف ایک فالو اپ چیک اپ کروا سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں نیو نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید سے۔ نوید بتائے گا 400 ارب کا بجٹ اور رکھے گئے صرف 12 ارب روپے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ موجودہ رواں مالی سال کی بات کریں تو صرف 80 ارب رکھے گئے ہیں، اور پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 400 ارب، اور 400 ارب موجودہ بجٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر 400 ارب میں سے جو 80 ارب نکال دے تو باقی جو ہے 300 غالباً 19 ارب جو ہے وہ 19 ارب کہاں سے آئیں گے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ظاہر ہے یہ ترقیاتی جو بجٹ ہے وہاں پہ تک لے جائے گا۔ ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، یہاں پہ مجموعی طور پر رواں مالی سال میں محکمہ صحت کے دونوں شعبوں کو 370 ارب بجٹ ہے، اور اس میں اتنا بجٹ پورے محکمے کا نہیں ہے جتنے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ 399 ارب نہیں کیا گیا۔ دوسرا میں یہ بھی یہاں پر بتا دوں کہ بہت سارے ایسے مراحل جن میں آپ نے بھی نام بھی لیا، جس میں سے آؤٹ ڈور کے بہت سارے مریض جو آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں، ان آؤٹ ڈور کے بعد ان کو جو ٹیسٹ لے کر دیے جاتے ہیں وہ بھی اس ٹیسٹ میں شامل نہیں ہے۔ بریسٹ کینسر تھراپی کرانے کے لیے جو مریض آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں اور تقریباً ایک قیمت تھراپی اگر کروائی جائے تو تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے کا خرچہ ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ اور 5 ماہ میں تقریباً یہ 6 مرتبہ کروائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایسے مریض جو بہت سارے مریض ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا
उंगलियां निशाना कि वो कहाँ से इलाज करवाएंगे। तो ये सारा मामला है कि सेहत कार्ड के ऊपर एक तो बजट जो है वो जो दावा किया जा रहा है अभी किसी को नहीं मालूम कि ये 399 अरब कहाँ से आएंगे, क्योंकि रवा माली साल में सिर्फ 80 अरब रखे गए हैं और हुकूमत दावा कर रही है कि ये पर 399 और उन पर 400 अरब का दावा कर रही है कि इस मनसूबे में 400 अरब रखे गए हैं। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत पीटीआई की हुकूमत से खुश नहीं है और IPSOS के सर्वे के मुताबिक 55% की राय में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी खराब रही। 32% पाकिस्तानी कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक है। सिर्फ 13% पाकिस्तानियों के नज़दीक पीटीआई हुकूमत ने तवक्कुआत से बेहतर काम किया। सर्वे में अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। IPSOS पाकिस्तान के मुल्की सर्वे के मुताबिक शहरी सूबाई हुकूमत और अपोजिशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। 63% पाकिस्तानी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से नालां नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 82% अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, जबकि सिंध में 75% और पंजाब के 52% शहरी अपनी सूबाई हुकूमतों से नाखुश निकले। सर्वे में शामिल 46% PTI के वोटर्स हुकूमत से खुश नहीं हैं, 56% नून लीग के वोटर्स, 47% पीपल्स पार्टी के वोटर्स और 51% ने दूसरी जमातों को वोटर्स हुकूमत से नालां हैं। सर्वे 18 से 24 दिसंबर 2021 के दरमियान किया गया, जिसमें 1100 अफराद ने हिस्सा लिया। IPSOS फ्रांस की मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है। सरबराह NCOC असद उमर का मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। ट्वीट में कहा कि कोरोना की नई लहर की आमद का खदशा चंद हफ्तों से था। जिन्यूम से बता रही हैं कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और वबा का ज्यादा फैलाव कराची में है। मास्क पहनना कोरोना से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को नामालूम अफराद की जानिब से व्हाट्सएप पर धमकियां दी गईं। व्हाट्सएप मैसेज में कहा गया है उन पर कातिलाना हमला हो सकता है, FIA को बता दें। हलीम आदिल शेख का कहना है इस मामले के पीछे पीपल्स पार्टी और बाजारी माफिया है, लेकिन उनके लिए ऐसी धमकियां मायने नहीं रखती। वो मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हलीम आदिल शेख साहब कहाँ हो आप? धमकी आमेज मैसेजेस का सिलसिला शुरू हुआ है। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को नामालूम अफराद की जानिब से व्हाट्सएप पर धमकियां, कातिलाना हमला हो सकता है, FIA को बता दें। मुबैना तौर पर पैगामात भिजवाने वाला पुलिस का हिमायती लगता है। पुलिस के जवान में गुस्सा पाया जाता है हलीम आदिल शेख के लिए। पुलिस दुश्मन हो गई है, कहीं भी कोई सीन क्रिएट करा सके। तो सारी प्लानिंग इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मुराद शाह और जरदारी हाउस है। हलीम आदिल शेख ने धमकी आमेज पैगामात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं इस साजिश के ताने बाने ऊपर की सतह पर हैं। ये कोई साजिश है जिसके ताने बाने को निचली सतह पर नहीं हो, बेचारे पुलिस वाले का कोई नहीं। क्योंकि मैं तो कहीं दहशतगर्दी होती है, पुलिस वाले अगर शहीद होते तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। पुलिस गर्दी होती है, कोई सिविलियन शहीद होता है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, बराबर है उसके अंदर। हलीम आदिल शेख ने वाजे किया जहाँ पुलिस से ज्यादती हो वहाँ भी जाता हूँ। मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए वो पीछे हटने वालों में से नहीं। दूसरी जानिब लाहौर में लीगी रहनुमा बिलाल यासिन पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल नीला गुंबद से खरीदा गया। पुलिस ने 3 असलहा डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून का हमला करने वाले अनासिर की निशानदही का मुतालिबा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हर तरफ लाकानूनियत का राज है। सयाहों की बड़ी तादाद वीकेंड पर मलिका कौसार मरी पहुंच गई। कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी और मॉल रोड पर सयाहों का रश लगा हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ताज बुखारी से जो इस वक्त कश्मीर पॉइंट पर मौजूद है। मौजूद हूँ इस वक्त कश्मीर पॉइंट पे, जहाँ पे स्याहों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस ठंडे ठार मौसम को मनाने के लिए आज कश्मीर पॉइंट, माल रोड और दीगर मुकामात पर मौजूद है। बात करते हैं, हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल हो, बट स्नोफॉल हुई नहीं और धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो वी आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। आप क्या कहेंगे?
हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी, लेकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से हम थोड़े से निराश भी हैं। बस यही है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। इसका कहना ये है कि मरी में आए थे बर्फ की आस पे, लेकिन बर्फ तो नहीं है, साइडों पे पड़ी हुई है, लेकिन ठंड है, मजा आ रहा है और भूख भी लगी हुई है। अभी हमने जाके खाना खाना है जी। बराह रास्त कराची ले चलेंगे, असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए, और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। यार इसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया, और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतज़ाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो है उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूँगा कि सिंध की हुकूमत इसकी ज़रूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन ख़रीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके ज़रिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिल फौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असम्बली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें इसमें। लेकिन जाहिर है हमने किसी सूबे का इंतज़ार नहीं किया, ना जैसे मैंने कहा कि तफरीक की, और वज़ीर आज़म की अहकामात के मुताबिक 250 अरब रुपए इस मुश्किल हालात के अंदर IMF का प्रोग्राम होते हुए उसके बावजूद वफाक ने खर्च किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। साथ साथ मैं क्योंकि कोरोना की बात करूं, चलते चलते ये भी बता दूं, आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वाज़े निशानात नज़र आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई जो है वो लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप सब लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें, और ये सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन सबको इस वक्त मास्क पहन के बैठना चाहिए, और ये बगैर मास्क के बैठे हुए हैं तो इनको भी मैं तंबीह करता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। तीसरी आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है, वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर कि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था, और हमारे ख्याल में वो गैर आइनी था। इसीलिए इसके ऊपर पटिशन फाइल की गई, एक MQM ने भी पटिशन फाइल की, तहरीक इंसाफ की पटिशन में खुद ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पटिशनर हैं, मैं उसका पटिशनर हूँ, और आमिर कियानी साहब जो उसका सेक्रेटरी जनरल थे वो पटिशनर हैं, और वो कोर्ट्स के पास मामला पहले से मौजूद था। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। और क्या वजह है मेरी, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल निज़ाम है, उसके अंदर सूबों के पास पहले से भी इख्तियारात थे, मज़ीद बहुत इख्तियारात के अंदर इजाफा किया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जिसके अंदर कुछ शायद दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन आपस में रब्त कैसे बेहतर किया जा सके।
لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھی چیز تھی کہ صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارا اسلام آباد سے نہ چلایا جائے بلکہ اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہوں. اسی طریقے سے تمام صوبوں کے اندر بھی یہ صورتحال موجود ہے. آپ پنجاب میں شروع کر لیں تو سرائکی علاقے سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر پنجاب کا درمیانی سارا وسطی پنجاب کا سارا ایریا آتا ہے، اور اس کے بعد آپ شمالی پنجاب میں جاتے ہیں، وہاں پر ہند کو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک طرف سرائکی بولنے والے ملیں گے، ایک طرف ہند کو بولنے والے ملیں گے. پشتو بولنے والوں کی ظاہر سب سے بڑی تعداد ہے وہاں پہ. پشاور میں پشاوری بولنے والے بہت سارے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے اندر پشتو بولنے والے، براوی بولنے والے، بلوچی ظاہر سب سے زیادہ بلوچ ہیں، بلوچی بولنے والے وہاں پہ موجود ہیں. اور اچھا وہاں پہ مکران ڈویژن کی ایک الگ ہی وہاں پہ ثقافت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.